गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, मंगलमय होंगे। आज हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस इन इंडिया। स्वतंत्रता से पूर्व हमारी जो अध्यापक शिक्षा थी वो कैसी थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम वैदिक काल से, या उपनिषद पीरियड कह सकते हैं हम इसे, उपनिषद पीरियड या वैदिक काल से हम इस अध्यापक शिक्षा पर चर्चा करेंगे कि अध्यापक शिक्षा जो हमारी वैदिक काल में किस तरह की थी, कैसी थी, उसका स्टेटस क्या था, उसकी पोजीशन क्या थी। इस पे हमारी एक ब्रीफ डिस्कशन चलेगा। वैदिक पीरियड के साथ हम बुद्धिज़्म पीरियड में क्या हुआ, अध्यापक शिक्षा में क्या व्यवस्थाएं थी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम उपनिषद पीरियड या वैदिक काल की बात करते हैं। इन द वैदिक इंडियन द टीचर enjoy the special status and position. He has held in a high esteem by the society, and this was due not only a learning and scholarship but also to qualities to head, heart and hand. The guru or the teacher was an embodiment of good qualities, a foundation of knowledge, and about the spiritual. The selection of preparation of a teacher has done with much rigor. According to Ringved, a teacher was selected and then educated or trained effectively. The teacher must have passed through the recognized curriculum and have fulfilled all duties of brahmachari before he was allowed to become a teacher. Teacher must sought knowledge and realization and were well received and well respected. The scholarly class of teachers, which later became a caste, Brahmins, became stratified with the passage to time and lost its original grandeur. Later on, teachers come from this caste to Brahmanis, and it became a hereditary profession. ऋग्वेद की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है कि ऋग्वेद के अनुसार यहाँ पर अध्यापक शिक्षा के बारे में जो हमारी प्रथा या प्रचलित प्रथा कह सकते हैं, पौराणिक टाइम से शिक्षा देने का जो कार्य था वे एक ब्रह्मचारी या कह सकते हैं ब्राह्मणों का काम था। वह ब्राह्मण जो थे वैदिक पीरियड में वह शिक्षा देने का कार्य करते थे। यहाँ पे इस बात को भी उल्लेखित किया है कि यह जो कार्य था वो एक हेरिडिटी प्रोफेशन था, मतलब आनुवांशिक रूप से व्यवसाय का कार्य ब्राह्मण करते थे। अगर कोई ऋषि मुनि शिक्षा देने का कार्य करते थे तो उनके पुत्र, अगर ऋषि की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद अगर उनके पुत्र होते थे तो वो शिक्षा देने का कार्य आगे बढ़ाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे हेरिडिटी प्रोफेशन की बात की गई है। Manu remarked that a son of the teacher sometimes helped his father by teaching in his father's place. The teacher was sometimes assisted in his work by some of the older and able pupils who acted as monitors, and this monitorial system, which was a method of including pupils to position of the teachers, was the contribution of an ancient education system. मॉनिटोरियल जो एक व्यवस्था थी शिक्षा की, वो कह सकते हैं कि यहाँ पे लागू थी, और यहाँ पर पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा को बराबर समझा जाता था। टीचिंग इन द उपनिषद पीरियड was known for the personal attention paid to the student, as the word Upanishad
There was an intimate relationship between the teacher and the discipline. The freedom to aspect of discipline rested with the teacher, but once he accepted a discipline, it's become his moral duty to see that the discipline grew. Similarly, a discipline or student had the freedom to choose his teacher. Knowledge was transmitted orally, since writing developed later, and explanation was once of the important method of teaching. The methods used by teachers were emulated and adopted by the disciplines and handed over from one generation of teachers to another. The transmission of methods through initiation, initiation and repetition continued. यहाँ पर अगर शिक्षा की बात करें, वैदिक पीरियड की बात करें, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो वैदिक काल में जो शिक्षा की विधियाँ थीं या शिक्षा की जो प्रविधियाँ थीं, ऋषि मुनि अधिकतर वहाँ पे देखने को मिलता है, हमें पढ़ने को मिलता है कि हम ऋषि मुनि या गुरु वेद का उच्चारण करते थे, उसके अर्थ को समझाते थे, और जो विद्यार्थी होते थे उसका मनन करते थे और उसको अपने मन मस्तिष्क में धारण करते थे। यहाँ पे इसी की बात की गई है कि जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता था या उनको किसी वेद का ज्ञान होने में समय लगता था, तो उसको रिपीट करना, विद्यार्थी को दोबारा वह अपना वेद का पूरा पीरियड, या कह सकते हैं कि वेद के ज्ञान के लिए उनको वो पीरियड दोबारा रिपीट करना पड़ता था। यहाँ पे इस बात को कहा गया है। तो वैदिक पीरियड में हमने ये देखा है कि अध्यापक के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। शिक्षा की व्यवस्था ज़रूर थी, लेकिन अध्यापक के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। ऐसी कोई प्रणाली या पाठ्यचर्या या ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि जिसे पढ़ कर के विद्यार्थी एक अध्यापक के रूप में निखर के सामने आता था। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था थी सामान्यतः हम देखे जाएँ कि ब्राह्मणों द्वारा या उनको ही गुरु मान करके उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी, वह शिक्षा ही विद्यार्थी ग्रहण करते थे। तत्पश्चात उनको एक शिक्षित व्यक्ति माना जाता था, परंतु अध्यापक शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था हमने नहीं देखी है। अब हम बुद्धिस्ट पीरियड या बुद्धिज़्म पीरियड की बात करते हैं कि बौद्ध काल में अध्यापक शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और कैसी थी। द monastic system, which has important feature of Buddhism, required that every novice on his admission should place himself under the supervision and guidance of the preceptor Pavaja. The discipline would choose a Pavaja with much care and showed him the utmost respect, and Pavaja on his part had much responsibility to the novice and Siddhi Viharika. He has to offer spiritual help to promote learning through religion among the discipline by teaching, by putting questions of him, by exhortation, by instruction. The teacher has to look after a discipline fully. The teachers employ other methods besides oral repetition, such as exposition, debate, discussion, question answer, use of stories, parables in Vihar and monastic school. Hetu Vidya or the inductive method has adopted in the intellect of the discipline was trained through it. The introduction of the logic as one of the subject helped sharpen the intellect and oratory which has emphasized. बुद्धिज्म पीरियड में हमें ये देखने को और पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पर जो अध्यापक शिक्षा थी उसका विस्तार तो था,
यहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था थी या शिक्षा जहाँ से स्टार्ट होती थी, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा स्टार्ट करने से पहले पवज्जा संस्कार होता था, जिसके अंतर्गत अपनी संस्कार की विधि को अपनाता था, जिसमें शिक्षक कुछ शब्दों को या कुछ श्लोकों को बोलता था और उसी को ही विद्यार्थी को रिपीट करना होता था। और कहा जा सकता है कि शिक्षक को ये बहुत ही केयरफुली या कह सकते हैं ध्यान से देखना होता था कि विद्यार्थी के द्वारा जो श्लोकों का या जिन शब्दों का उच्चारण हुआ है वो सही है नहीं है। यहाँ पे मेथड्स और ओरल रिपीटिशन की बात की गई है, डिबेट डिस्कशन की बात की गई है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड की बात हुई है। तो यहाँ पे जो अध्यापक शिक्षा थी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा का जो प्रसार था वो बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार के साथ साथ जो एक पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा के लिए बुद्धिज्म काल में भी ऐसी कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी, परंतु हम इसको यहाँ ये कह सकते हैं कि बुद्ध काल में या बौद्ध काल में अध्यापक शिक्षा दी जाती थी। अध्यापक शिक्षा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने अधिकतर बुकों में या अधिकतर हमने किताबों में ये पढ़ा है कि जिन्हें बौद्ध काल के चरण का या ज्ञान हो जाता था, और उनको उन भिक्षुओं को, जो विद्यार्थियों को एक चरण का ज्ञान हो जाता था, उनको द्वितीय चरण में जाने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हुए अपना मूल्यांकन करना होता था। जब वो अपने मूल्यांकन में सफल होते थे तो उनको ये अधिकार दिया जाता था कि वह अपने नए विद्यार्थी जो अपने मठों में विहारों में प्रवेश ले रहे हैं उनको वो ज्ञान दे पाते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा थी, परंतु बौद्ध काल में नहीं, परंतु वैदिक काल में जो हमारी अध्यापक शिक्षा थी वो बिल्कुल नहीं थी। और बौद्ध काल में हमारी ये अध्यापक शिक्षा को हम कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से इसकी व्यवस्था थी। और इसको आगे बढ़ाते हुए इस्लामिक की अगर हम बात करें या मिडिवल पीरियड की बात करें, जिसे हम मुस्लिम काल भी कहते हैं, तो मुस्लिम काल में जो अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था थी वो नहीं थी। अध्यापक शिक्षा मुस्लिम काल में बिल्कुल नहीं थी। औपचारिक रूप से मुस्लिम काल में भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि उनके लिए मकतब मदरसों में किसी प्रकार का कंटेंट या पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को लागू किया है, विद्यार्थी उसको ग्रहण करें और वह अध्यापक बन जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था मुस्लिम काल में भी हमें देखने को नहीं मिलती है। और मुस्लिम काल में भी अध्यापक शिक्षा के लिए किसी प्रकार की शिक्षण भी, जब अध्यापक का ही शिक्षण नहीं दिया जाता था, अध्यापक शिक्षा का ही शिक्षण नहीं दिया जाता, तो शिक्षण विधियाँ नहीं दी जाती थी। परंतु नॉर्मली या कह सकते हैं सामान्यतः शिक्षा की व्यवस्था हमने मुस्लिम काल में भी देखी है। और मुस्लिम काल में भी शिक्षा की व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी को शिक्षण का कार्य शिक्षित करने का कार्य किया जाता था। वह शिक्षित होते थे और उनको शिक्षण ग्रहण कराया जाता था। धन्यवाद।